Okay. If there is no doubt, so we will continue. It has different layers. First layer is topsoil. Topsoil is the uppermost layer of the soil. It contains a lot of humus. It is very fertile. It provides nutrition to the plants to grow. It is a home for many animals. सेकेंड हमने किया था सबसॉइल. हाँ जी बेटा, in this manner it is quite tough for me to understand. Yes, either one will speak or I will speak, right? Okay, let me finish. Afterwards you will tell them. In the subsoil, this is the second layer of the soil. It is also called as B horizon. It contains little humus and roots of very big trees can reach up to the subsoil. Right? It contains iron oxides and some of the minerals. It is harder and compact. That is all about the subsoil. Third, let's move to the third layer of the soil, which is called as substratum. This substratum, we will also call it as C horizon. I think in your book it is mentioned as C horizon. Its another name is substratum, right? This layer is below the subsoil. Below the subsoil, you will find this layer means, right? We can find this layer below the subsoil. It is made up of, किस चीज से बनी होती है? मैंने डायग्राम में बनाया था. बिल्कुल ठीक है. It is made up of small pieces of rocks, या lumps of broken rocks, whatever you want to write. ठीक है जी? Why there is a voice? Should I change the seats then? It is made up of small pieces of rocks, and these pieces of rocks, they are formed by the partial weathering. Weathering पता है ना? Cracking of rocks. और ये pieces जो हैं, they are formed by the partial weathering. Means पूरी weathering नहीं होती है, rather partial weathering of parent rock. जो भी इनका rock होता है, ठीक है, वो पूरी तरह नहीं टूटता, rather there are some small pieces of the rock are there. Is it clear? Moving upon to next. हमने किया था topsoil contains a lot of humus, subsoil contains less humus, और इस लेयर में absolutely there is no humus. ठीक है, हाँ लिख लो. It does not contain humus and obviously it is very infertile. Do not contain humus, do not has humus, and quite infertile. It do not contain humus and is quite infertile. This layer is having so many cracks and surfaces. Surfaces means narrow passages. Has
Would you like to come forward? This is the last warning to both. Has many cracks and services. ठीक है? Services means CER as a narrow passages. ये बेसिकली बेडरॉक की बनी होती है. यू विल फाउंड बिलो दी सबसॉइल. हाँ जी, इट नैरो पैसेजेस, बहुत बारीक बारीक पैसेजेस होते हैं. ठीक है? और दिस लेयर allows the water to penetrate through it. It allows water to penetrate through it. आपको विजिबिलिटी हो रही है कि ऊपर लिख दूं? बस पता चल गया मुझे. I will write the next point up. ठीक है? It allows water to penetrate. यहाँ पे आप लिख लोगे सबसॉइल वाला, तो मैं यहीं पे ऐड कर रही हूँ. It allows water to pass through it भी लिख सकते हो बेटे. पेनिट्रेट से बेटर वर्ड है पास थ्रू इट, क्योंकि इसमें से वाटर पेनिट्रेट की बजाय पास करता है, अपना रास्ता फाइंड आउट करके निकल जाता है. ठीक है? नीचे चला जाता है, बट इट पासेस, वाटर पासेस फ्रॉम दिस लेयर. पेनिट्रेट होता है वहीं से सिप सिप करके नीचे आना, सीप करना. लास्ट लेयर is bedrock. This is perhaps the hardest layer of the earth, made up of hard rocks. It is also called as the horizon. हाँ जी, please note it down. Bedrock is also called as the horizon. It is found below the third layer. It is made up of hard rocks that are interlinked with each other. ठीक है? ये इंटरलिंकिंग वाला पॉइंट चाहे मत लिखो, बस इतना ही लिख लो. इट इज मेड अप ऑफ हार्ड रॉक्स. दिस लेयर इज सॉलिड एंड नॉन पोरस. दिस इज सॉलिड एंड नॉन पोरस layer means even water or air is not allowed to move through this layer. This layer is actually solid and non-porous. Clear? Non-porous means कि उसमें holes नहीं होते छोटे छोटे. ठीक है? Even water cannot penetrate through this layer. Water cannot penetrate through this layer. अगर वाटर इस लेयर के नीचे नहीं जाता, देखो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है रेन वाटर, आपने सुना हुआ है होता है. ठीक है? अगर रेन होती है तो जो वाटर है वो सॉइल में चला जाता है. वाटर एंटर्स इन द सॉइल. आई विल मेक अ रफ डायग्राम अगेन. सपोज ये हमारा सॉइल प्रोफाइल है. हाँ जी, एक मिनट में आती हूँ. एक मिनट बेटा प्लीज. हाँ जी, प्लीज नोट करो. सपोज ये हमारा सॉइल प्रोफाइल है, तो सबसे नीचे आपका बेडरॉक है. मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ बेटे, सिर्फ लिख ही रही हूँ. बेडरॉक के ऊपर आपकी थर्ड लेयर है सबस्ट्रेटम.
that is of rocks. इसमें स्मॉल रॉक पीसेस हैं जिसमें से पानी पास कर जाता है. उसके ऊपर आपकी है सबसॉइल. This is your subsoil, and at the topmost there is topsoil. This was your soil profile ना. और इस soil profile के according, if there is rain in any area, the water comes here, soil में जाता है. Topsoil porous है तो water penetrate करके subsoil तक आ गया, पानी यहाँ पे आ गया. और यहाँ से भी चाहे ये रॉक हार्ड है, वाटर का प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा स्लोली इट मूव, इट स्टिल मूव्स डाउन. इट मींस वाटर यहाँ पर आ गया. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्रैक्स है, नैरो पैसेजेस हैं, तो अपनी जगह ढूंढ के वाटर यहाँ पे आ गया. इस जगह पे आपका पानी आ गया. अब नीचे क्या है, बेडरॉक. और बेडरॉक के लिए हमने क्या लिख दिया, इवन वाटर कैन नॉट पेनिट्रेट, कि मीन्स पानी भी यहाँ से नीचे नहीं जा सकता. अगर पानी यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, विल इट एक्युमुलेट ओवर हियर, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, है ना. और यही होता है हमारा ग्राउंड वाटर. वी आर स्टडिंग अ वर्ड ग्राउंड वाटर ना. सो ग्राउंड वाटर क्या होता है, The ground water is the reservoir of water. Water की एक, आप ऐसे कह सकते हो, बड़ी सी टैंकी है just above the bedrock. bedrock तक पहले पहुंचो, ठीक है. Afterwards we will think of that. Exactly, इसके कई reasons हैं. I will discuss in the break. ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू अवर सिलेबस. डिग डाउन करना पड़ता है. उसके अलावा भी है, जितना ज्यादा आप अर्थ के नीचे जाते हो ना बेटे, हाँ गर्मी बढ़ती रहती है, और जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे आप डिग कर रहे हो, दे आर स्टार्टेड मेल्टिंग. तो एक प्रॉब्लम नहीं है, जितनी स्टडीज, जो भी रिजल्ट आप स्टडी कर रहे हो, वो उसमें से काफी assumptions है, काफी प्रूफ भी है. कुछ चीजों के प्रूफ हो गए, हो सकता है कल कोई और थ्योरी आ जाए जो आपने पढ़ा है सब गलत कर, ठीक है. लेकिन फिलहाल इन चीजों का जो प्रूफ सामने आ रहा है वो आपको पढ़ाया है. क्या इतना तो चले गए ना, यहाँ तक उन्होंने कर लिया हुआ है. अभी नीचे जाएंगे बेडरॉक के तो पता चलेगा. इवन हिल्स, जो हिल्स होती हैं, वी यूज्ड टू मूव ऑन द हिल्स, तो हिल्स के नीचे हमें इजी रहता है थोड़ा सा डिग करना, ठीक है. हिल्स के ऊपर टॉप सॉइल है, देन सब सॉइल है, तो उसके नीचे हम इजीली डिग कर सकते, ठीक है. सो व्हाट वी फाइंड इट ओवर हियर, वी फाउंड हियर इज ग्राउंड वाटर. सो व्हाट इज ग्राउंड वाटर? बिल्कुल, इट इज अ रिजर्वॉयर ऑफ वाटर, reservoir of water above the bedrock, above the bedrock, in which rain water is added, ठीक है. reservoir of water above the bedrock, yeah, that accumulates rain water, ठीक है, which accumulates water. जो वाटर एक्यूमुलेट करता है, दैट इज अ रिजर्वॉयर ऑफ वाटर. ऑब्वियसली अगर ये रेन वाटर है, इफ देयर इज अ ड्रॉट कंडीशंस, अगर कहीं पे ड्रॉट कंडीशंस होंगी तो ये वाटर लेवल ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएगा, कम हो जाएगा. इफ देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ रेन तो वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा. और जो हम घर में सबमर्सिबल पंप्स वगैरह लगाते हैं कि नहीं, वो यहाँ तक लगाते हैं कि पानी तक पहुंच जाए, राइट.
and you can take this water. इकट्ठा करना, accumulates water. ठीक है, मेनली यहाँ पे रेन वाटर कर लो, मेनली लिख लेना वर्ड आगे, विच accumulates mainly रेन वाटर. हाँ जी, ग्राउंड वाटर. ठीक है जी, दैट वाज आवर क्वेश्चन. हाँ जी बच्चे, कल वाली जो हमारी एक्टिविटी थी उसको हमने रखा था पर वो हुआ नहीं. एक्चुअली हमारी क्ले यहाँ पे बहुत फाइन है, इसलिए आपको यहाँ पे सैंड और क्ले की अलग अलग लेयर्स नहीं मिली. बट आई थिंक वाटर, ह्यूमस और क्ले, तीन चीजें तो बिल्कुल क्लियर है. क्ले, वाटर और ह्यूमस, तीन चीजें क्लियर है कि नहीं? ठीक है. रही बात सैंड, सिल्ट और पेबल्स की, उसके लिए स्पेशल आई थिंक सॉइल वी हैव टू अरेंज. ठीक है, स्पेशल सॉइल मींस somewhat of sand, somewhat of clay and then pebbles etc. मिट्टी सेम होती है लेकिन उसमें थोड़ी सी आपकी सैंड अलग से ऐड कर देते हैं. ठीक है, ये तो मुझे लगता है गार्डन की मिट्टी लग रही है, वही है ना, इसीलिए तो है नहीं इसमें पेबल्स, और स्टोन्स कलेक्ट करके डाल देते हैं थोड़े से बीच में. ठीक है, क्लियर है सबको? दैट्स ऑल फॉर सॉइल प्रोफाइल. नाउ नेक्स्ट, अब तक बच्चे हमने सॉइल वाले चैप्टर में बेसिकली किया क्या है? अब तक हमने सिर्फ किया है डेफिनेशन ऑफ सॉइल, इट्स यूजेस, डेफिनेशन ऑफ सॉइल, its uses, its formation, its composition and soil profile. और ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं दोबारा. और इसके साथ साथ एक और चीज हमने रिकॉल करनी है, that is the recall. Otherwise you all know it very well, that is different types of soil. उसके बाद करेंगे properties of soil. How many types of soils are there? 3. हाँ, alluvial. बेटा लिसन, बेसिकली सॉइल इन 3 टाइप्स की होती है. इसके अलावा आपने पढ़ी होगी एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, उसमें अलग इन वो क्या होती है, वो बेसिकली इन दोनों का मिक्सचर होता है. सॉइल बेसिकली 2 ही टाइप्स की होती है, सैंड या क्ले. और इस दोनों में आपको फर्क बेसिक बता दिया कि सैंड के जो पार्टिकल साइज है वो बड़ा होता है, क्ले का पार्टिकल साइज थोड़ा स्मॉल होता है. बीच वाला जो साइज होता है उसको हम सिल्ट कह देते हैं. और इनके मिक्सचर से बाकी सारी सॉइल्स बनती हैं. जो आपकी एलुवियल सॉइल है वो भी एक तरह की लोमी सॉइल. ठीक है, तो आई विल राइट 2 to 3 पॉइंट्स जो इनका डिफरेंशिएशन भी है, इनकी प्रॉपर्टीज भी है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी. ठीक है, 2-3 पॉइंट्स हम वही करते हैं. फर्स्टली तो कॉम्पोजिशन. सैंडी सॉइल की कॉम्पोजिशन क्या है? इट कंटेन्स अबाउट 70 to 80% सैंड. इसमें सैंड ज्यादा होती है. ठीक है, और बाकी की क्या होती है? सिल्ट एंड क्ले. जिसमें ज्यादातर सैंड पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज अ सैंडी सॉइल. क्ले कंटेन्स मोर क्ले पार्टिकल्स. इसमें सैंड पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, इसमें क्ले पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं. और लोमी सॉइल क्या है?
it contains both sand, silt and clay almost in equal amount. Almost equal amount होती है, कोई किसी में थोड़ी क्ले थोड़ी सी ज्यादा होगी, किसी में थोड़ी सी सैंड ज्यादा होगी, रफली बराबर ही होती, ठीक है. इट कंटेन्स सैंड, सिल्ट एंड क्ले ऑलमोस्ट इन इक्वल अमाउंट. ये तो हो गई कंपोजिशन. सेकेंड, पार्टिकल साइज. अब ठीक है, ओके. हाँ जी, पार्टिकल साइज. हाँ जी, सैंडी सॉइल का पार्टिकल साइज कैसा होता है? क्वाइट लार्ज. क्लेई सॉइल का वेरी फाइन पार्टिकल्स, साइज इज लेस एंड वेरी फाइन पार्टिकल्स मीन्स बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म के पार्टिकल्स. इवन कॉम्पोजिशन में तो मैंने आपको इनका साइज भी करवाया. पार्टिकल साइज इज क्वाइट लेस, रादर वेरी फाइन पार्टिकल्स विल बी देयर. और लोमी सॉइल में कैसे होते हैं? मिक्सचर है तो नॉट टू बिग नॉट टू स्मॉल, ठीक है, एवरेज. ठीक है, मीडियम एंड बोथ लार्ज एंड स्मॉल, ठीक है, एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल्स विल बी देयर. इसके बाद ड्यू टू दिस पार्टिकल साइज बेटे, एक दो पॉइंट्स आपके यहाँ आते हैं जो आप कई बार रिवर्स कर जाते हो. नंबर वन, हियर does it contains here? Yes, sandy soil contains lot of air, ठीक है. it gives space to for air, has space for air. लेकिन क्लेई सॉइल क्या होती है? उसका पाउडर साइज बहुत स्मॉल होता है, पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं, दे आर स्टिकी, आपस में चिपक जाते हैं. तो जब पार्टिकल्स आपस में चिपक जाएंगे, क्या उनके बीच में स्पेसेस होंगी? है ना. सो इट डू नॉट प्रोवाइड स्पेसेस, ठीक है, या डू नॉट हैज एयर स्पेस. इसमें हैज मोर एयर स्पेसेस, इसमें एब्सोल्युटली नो एयर स्पेसेस. लोमी सॉइल में कैसी होती है एयर स्पेसेस? मॉडरेट अमाउंट ऑफ एयर स्पेसेस आर देयर, ठीक है. अगेन फॉर वाटर, पानी के लिए अगर बात करें, water, can sandy soil hold water? No, sandy soil cannot hold water क्योंकि उसका साइज बड़ा है, पानी उसमें से निकल के नीचे चला जाएगा, ठीक है. So it cannot hold water. Can sticky soil hold water? Yes, it can hold much water. और रादर कई बार ये सॉइल इतना ज्यादा पानी होल्ड कर लेती है दैट इज इवन नॉट रिक्वायर्ड, आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा वाटर स्टोर कर लेती. एंड नेक्स्ट लोमी सॉइल, इट विल होल्ड एक्यूरेट अमाउंट ऑफ वाटर, जितना उसको चाहिए उतना रख लेती है. इट कैन होल्ड
accurate amount of water. हाँ जी बच्चे, क्लियर? लास्ट पॉइंट कौन सा? ये मॉडरेट वाला। Loamy soil has moderate number of air spaces. Has moderate air spaces means ना तो बहुत ज्यादा होती है ना बहुत कम होती है। कलर सैंडी सॉइल का कैसा होता है? ऑलमोस्ट सिल्वर ग्रे। सैंड देखिए ऑलमोस्ट सिल्वर ग्रे कलर की होती है। क्लेई सॉइल डार्क ग्रे कलर की होती है, डार्क ब्राउन। श्रेया जसलीन अक्षित। श्रेया जसलीन अक्षित नहीं। हाँ जी बच्चे, इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर आपने कलर को डिफरेंस में ऐड करना है, यू कैन ऐड इसका सिल्वर या गोल्डन। गोल्डन लिख लो, सिल्वर लिख लो, दोनों लिखे जाएंगे क्योंकि वो भी होता है। और ये मेनली होता है डार्क ब्राउन कलर में, और ये जो होता है ये इंटरमीडिएट कलर होता है बिटवीन द गोल्डन एंड दैट डार्क ब्राउन। ठीक है, वो तो करते हैं, राइट? नेक्स्ट पॉइंट which I will prefer, that is, बेटे all of us know that ह्यूमस क्या होता है? इट इज अ ऑर्गेनिक मैटर। और जो सैंडी सॉइल है इसमें वेजिटेशन भी कम होती है, प्लांट्स कम ग्रो करते हैं ना, सो इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस। रुक जाओ, आ रहे हैं उसमें, ठीक है। इट हैज वेरी लेस ह्यूमस, amount of humus is very less in the clay soil. Also there is less amount of humus because not so many plants or grow over here, not so many animals, comparatively kam hoti hai, but loamy soil has a good amount of humus. loamy soil में अमाउंट ऑफ ह्यूमस काफी गुड होती है। इट हैज वेरी गुड अमाउंट ऑफ ह्यूमस। और साथ ही साथ ये वाली जो सॉइल होती है बेटे, इट इज क्वाइट लाइट, काफी हल्की होती है, एंड इट कैन बी ब्लोन अप बाय दी wind, air लिख लो, blown up by the however clay soil is sticky, clay soil that is quite sticky, काफी ज्यादा चिपचिपी होती है, and even it is heavier than sandy soil, and if it is wet तो बहुत ज्यादा sticky होती है। wet sticky है अगर वो गीली है, ठीक है। और साथ ही साथ if it is dry तो then it is hard, अगर आप उसको ड्राई कर दोगे, hard if dry। टेक्सचर लिख लो, टेक्सचर लिख लो, ठीक है। लोमी ना तो हल्की होती है, इट इज नाइदर टू स्टिकी, इसकी को लिख लो, इट इज नाइदर टू स्टिकी नॉर वेरी लाइट।
ठीक है, क्योंकि मिक्सचर है, ना तो बहुत लाइट है ना ही बहुत हैवी है, neither too sticky nor too light. I think these are the few of the parameters of difference. इसके अलावा बेटे हर एक सॉइल के एक एक दो पॉइंट्स आप एडिशनल ऐड करें. neither too sticky nor very light, neither, जो मिक्सचर है देख लो कैसा होगा. चर्चे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दिस सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर द प्लांट ग्रोथ. अब इसके अलावा एक एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख लो. जैसे लोमी सॉइल है, सिंस यू नो ऑल द प्रॉपर्टीज, इट कैन होल्ड वाटर, इट कैन होल्ड एयर आल्सो, so it provides proper spaces for the roots to breathe, contains a good amount of humus, so it is very fertile. Rather, it suits best for the plants. Kindly add this point also. It is best for the plants and is quite soil. ये properties में add कर लेना. It is best for plants and is very fertile. Clear?